This show is powered by Universal College of Engineering and Technology and HCG Cancer Hospital. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વની આપણી સાથે મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ અંતરંગ. આજે એક એવું વ્યક્તિત્વ કે જે વ્યક્તિ સતત 11 વર્ષ સુધી અલગ અલગ યાતનાઓ ભોગવી અને એ યાતનાઓ ઉપર સતત આક્ષેપો થયા અને એ આક્ષેપોની સાથે 11 વર્ષ સુધી જેલની અંદર રહીને સમાજથી તિરસ્કૃત થઈને મીડિયામાં સતત ટાર્ગેટ બનીને કોઈ પણ જગ્યાએ જ્યારે પણ હિન્દુસ્તાનમાં થયેલા મોટા હુમલાની વાત આવે તો એ ઘટનાના આરોપી તરીકે જેની ઓળખાણ થાય એ વ્યક્તિ આજે અમારી સાથે હાજર છે અને 11 વર્ષ પછી જ્યારે તેઓ નિર્દોષ છૂટીને બહાર આવે છે ત્યારે એક પુસ્તક લખે છે કે 11 યર્સ બિહાઇન્ડ ધ બાર્સ, 11 વર્ષ જેલના સળિયા પાછળ, 11 સાલ સલાખો કે પીછે. આ પુસ્તકના લેખક અક્ષરધામ પર હુમલામાં જેમને ફાંસીની સજા જાહેર થઈ હતી, સુપ્રીમ કોર્ટે જેમને નિર્દોષ છોડ્યા, તેવા મુફ્તી અબ્દુલ કયુમજી અમારી સાથે જ. મુફ્તીજી, આપનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં. થેન્ક યુ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો અબ્દુલ કયુમજી, જી જી જ્યારે નામ પાડ્યું હશે ફેમિલીમાં, જન્મ થયો આપનો, જી 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 તો એક નામમાં જ્યારે અબ્દુલ કયુમ એ નામ પાડ્યું, કેટલી બધી આશાઓ ભાવનાઓથી આ નામ બનાવ્યું હશે. નાના હતા ત્યારે નામ મતલબ પણ સમજાવવાની કોશિશ કરી હશે, જી નામથી ફક્ર થતું હશે, જી જી પરંતુ એ જ નામ 2003માં એ નામ ખરાબ રીતે લેવાતું હતું. જી જી આ એ જ આરોપી કે જેણે અક્ષરધામમાં નિર્દોષોનો ભોગ લીધો, ષડયંત્ર કાવતરું જેણે રચ્યું, જી જી એવો મુખ્ય આરોપી સતત લોકોની નજર જ્યારે આ ડિટેલ બની સૌથી પહેલો દિવસ, કારણ કે મને ખ્યાલ છે આપણે ઘણી બધી વાતો આપણે એ બુકમાં લખી નાખી છે, મારેથી બુકમાં નથી જવું કારણ કે લોકો વાંચશે જ, લોકો વાંચી પણ રહ્યા છે. માય ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ટુ યુ મિસ્ટર અબ્દુલ કયુમ, જ્યારે પહેલીવાર એવું જાહેર થયું કે અક્ષરધામ કાંડના મુખ્ય આરોપી તરીકે અબ્દુલ કયુમ છે, આ સાંભળવાનું કાને પડ્યું, વોટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ રિએક્શન? શું હતું ફર્સ્ટ રિએક્શન આપનું? મારા પાસે એ જે દુઃખ હતું, એ સમયે મને જે દુઃખ થયું છે એ વર્ણન કરવા માટે મારા પાસે શબ્દો નથી. કારણ કે આ એટલો ગંભીર આક્ષેપ હતો કે જેનું ઇસ્લામમાં જેના માટે કોઈ સ્થાન નથી. મેં બુકમાં પણ વાત લખી છે કે પૈગંબર સાહેબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે જે ખરેખર જે જંગો લડી છે, આતંકવાદને તો ઇસ્લામમાં કોઈ સ્થાન છે જ નહીં. ઇસ્લામ તો એ પવિત્ર મઝહબ છે કે જ્યાં બિલાડીને, નિર્દોષ બિલાડીને કોઈ મારે તો એના ઉપર નર્કની સજા યાતનાની પૈગંબર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ધમકી ઉચ્ચારી છે કે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ બિલાડીને મારે તો એને નર્કમાં જવું પડે, કે એક કૂતરાને પાણી પીવડાવવા માટે સ્વર્ગની બશારત પણ પૈગંબર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે આપી છે. એનાથી ઝીણવટ, એનાથી બારીકીમાં જઈએ તો કીડી માટે પણ પૈગંબર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે એમ કીધેલ છે કે તમે એક નિર્દોષ કીડીને મારી નાખો તો એના માટે પણ તમારે આખેરતમાં પુનર્જીવન જે થશે, આખેરતમાં હિસાબ કિતાબ થશે, ત્યાં અલ્લાહને જવાબ આપવો પડશે. તો આતંકવાદને, ટેરરિઝમને તો ઇસ્લામમાં કોઈ સ્થાન છે જ નહીં. જે ખરેખરની જે જંગો હતી, કેમ કે દરેક મઝહબમાં ધાર્મિક યુદ્ધ, પવિત્ર યુદ્ધ થયા છે, ઇस्लाम પણ ઘણા યુદ્ધ થયા છે. બદર નામ છે એક યુદ્ધનું. अब्दुल कयूम जी, मेरा सीधा सवाल आपको ये था कि जब ये आपको मालूम पड़ा जी कि आपका नाम इस हादसे में जुड़ा गया है, जी जी और ऐसे जुड़ा गया कि जो भी बनाया था पूरा डिजाइन वो इस शख्सियत ने किया था, क्या था फर्स्ट रिएक्शन जब ये जानने आपको मिला? जी, मैं उसी को थोड़ा सा डिटेल में बताने जा रहा था. शॉर्टली है कि मैं इस गंभीर आक्षेप को लेकर बहुत ही मतलब
हताशा जैसा हो गया था कि चलो एक छोटा सा आक्षेप, कभी कोई छोटी बात होती, कि इतना गंभीर आक्षेप के मंदिर के ऊपर हमला, निर्दोष लोगों के ऊपर हमला, साधु संतों के ऊपर हमला। मैं वही बात थोड़ा डिटेल में बताने जा रहा था कि जो वाकई जंगें होती हैं, जिसको दुनिया धार्मिक युद्ध के नाम से जानता है, चाहे मुसलमानों में भी होता है, गैर मुस्लिमों में भी होता है, उन धार्मिक युद्धों में भी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि किसी भी धर्मगाह को नुकसान मत पहुंचाना, मजहबी इबादत गाहों को, मंदिरों को, चर्च को, या और गुरुद्वारा है, या और भी जितने दुनिया में मजहब हैं, धर्म में, किसी के भी धर्मगाह के ऊपर हमला मत करना, किसी भी धार्मिक व्यक्ति को ईज़ा मत पहुंचाना, बच्चों को ईज़ा मत पहुंचाना, औरतों को ईज़ा मत पहुंचाना, बूढ़ों को ईज़ा मत। जब आमने सामने की जंग में भी ये सारे लोगों के लिए कहा गया कि इनको ईज़ा मत पहुंचाना, तो ये तो बिल्कुल खुला आतंकवाद है, खुला टेररिज्म है कि निर्दोषों के ऊपर हमला कर देना। ये कोई आमने सामने की जंग भी मतलब इतनी छोटी छोटी बातें जो आप सिखाते थे, हाँ, मुफ्ती साहब सिखाते थे, जी जी जी, और उन्हीं के ऊपर लगा इतना गंभीर आक्षेप। हाँ, ये मैं समझता था कि ये सिर्फ मुझ पर नहीं था, ये पूरे इस्लाम पर आक्षेप था, मदरसों पर आक्षेप था, कुरान पर या हदीस पर, क्योंकि कुरान की तालीम वो नहीं है लोग जो समझते हैं, या हदीस की, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम वो नहीं है कि लोगों को मारो और काटो और लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाओ या लोगों को दुनिया से ख़त्म करो, दुनिया में आतंक और दहशत फैलाओ। ये हरगिज़ कुरान की तालीम नहीं है, हरगिज़ हदीस की तालीम नहीं है, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। देश वफ़ादारी, देश से मोहब्बत करना, देश पर मर मिटना, देश के खातिर बलिदान देना, देश से मोहब्बत करना, ये तो प्रेम करना, ये तो हमारे इस्लाम में है। आपने बताया कि क्योंकि आपने तो बहुत ही डिटेल स्टडी भी किया है जी, जी, अपने रिलीजियस, आपको लगा कभी भी कि ये जो आपको इतनी यातनाएं मिल रही थी, इतना दर्द मिल रहा था वो 11 साल में, क्या इंडिविजुअल खुद इतने रिलीजियस होने की वजह से ये सब सहन करने की ताकत मिली थी, या खुद मिस्टर अब्दुल कयूम इतने स्ट्रांग थे नहीं, कि वो अंदर से डेवलप करते थे कि जो होना है बस इस टाइम को मैं निकाल डालूं, आने वाला कल अच्छा आएगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ऊपर वाला मेरे सामने देखेगा। हाँ, मुझे देखो ईश्वर में, अल्लाह में विश्वास भरपूर था। मैं खुद तो कमज़ोर आदमी हूँ, मैं कोई स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं हूँ, और ये यातनाएं उस वक्त सहन कर ली, वो भी मैं कुदरत की करामत कहूँगा, मेरी कोई ताकत, कोई देन नहीं है। हाँ, मुझे ईश्वर में, अल्लाह में भरपूर विश्वास था, और मैं उस वक्त क्राइम ब्रांच में भी VD वनार को खास कर एक बात कहता था कि साहब, जिस वक्त देश को बलिदान की ज़रूरत पड़ेगी हम आगे आएंगे। मुझे उस वक्त भी विश्वास था कि मुझे इसमें से रिहा होना है, छूटना है। ईश्वर अल्लाह में भी विश्वास था, यहाँ के न्याय तंत्र में भी विश्वास था, और हमारा विश्वास पूरा हुआ है। और ये तो मैं ज़िंदा रहा और इतनी यातनाएं सहन कर ली, ये कुदरत की करामत समझिए अब। अब्दुल कयूम जी, बेसिक सवाल ये आता है कि 11 साल के बाद इन बिटवीन जब फांसी का ऐलान हुआ, पहला तो सबसे दर्द, सबसे बड़ा झटका जब आपको अरेस्ट किया था, दूसरी बात जब कोर्ट में खड़े थे और जज ने आपको फांसी की सजा सुनाई, मुझे वो मोमेंट याद करानी है। मैं एक बात कहूँ, शायद आपको ताज्जुब होगा, जजमेंट से एक वीक पहले हमारी वकील मुलाकात आई। मिस्टर RK शाह मेरे वकील थे, बड़े ईमानदार आदमी और बिल्कुल सच्चे आदमी और दो टोक कहने वाले आदमी। उन्होंने मुझे, वो और उनके असिस्टेंट थे दर्शन शाह, उन्होंने मुझे एक बात की कि जो मुफ्ती ईश्वरती पहली दुआ तो ये करजे कि निर्दोष छूटे तू, केम के हमें जानिए छे निर्दोष छे ने, कदाच सज़ा आवવાની હોય तो એવી दुआ करजे कि फांसीની सज़ा होवे। ये शायद आपको ताज्जुब होगा और सभी को ताज्जुब होगा, लेकिन उनकी अपनी एक बहुत अच्छी सोच थी। उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया कि तू એવું ना समझते कि तारे हितमा नहीं विचारतो, बल्कि उन्होंने एक बात ये समझाई कि फांसी की सज़ा होगी तो जल्दी तेरा निकाल आ जाएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, वरना ऐसा होता है कि लाइव सज़ा जो होती है तो बरस आदमी के उसी में अपील पेंडिंग ही में ख़त्म हो जाते। तो इस लेकर थोड़ा सा मानसिक तैयारी मैंने रखी थी कि शायद सज़ा आ सकती है, इसलिए मैं दुआ करता कि निर्दोष हो जाऊँ और अगर सज़ा आनी है तो फांसी की आए। तो इतना ज़्यादा सुनकर इतना ज़्यादा ताज्जुब या टेंशन, हाँ उस वक्त ज़रूर दुख ज़रूर हुआ, गम ज़रूर हुआ, ख़ासकर मेरे दूसरे जो साथी थे वो रो रहे थे तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन
इत्मीनान, दिल में विश्वास और इत्मीनान एक बात को लेकर हो गया कि चलो इंशाल्लाह जल्दी न्याय की उम्मीदें बढ़ गई कि चलो यहाँ से नहीं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से तो मिल ही जाना है। तो थोड़ा सा दिल में तसल्ली और इत्मीनान भी था। नो डाउट दुख इस इतनी बड़ी सज़ा और इतने गलत केस के अंदर, और केस भी इतना अच्छा चला था, और हमारे आर.के. शाह साहब ने इतनी अच्छी मेहनत की थी कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर, और वो 2 उर्दू लेटर्स जो मेरे ऊपर जो एलिगेशन था कि मैंने फ़िदा हिंद को ये 2 आतंकियों को उर्दू लेटर्स दिए थे, उसके डिफेंस में बहुत अच्छी मेहनत की थी वकीलों ने। विश्वास पूरा था, ईश्वर अल्लाह से भी विश्वास था, न्यायतंत्र में भी विश्वास था, हमारे वकीलों ने भरपूर मेहनत भी की थी। उसके बावजूद जब नतीजा फेवर में नहीं आया तो दुख होना तो लाजिमी चीज़ है, लेकिन सामने थोड़ा सा इत्मीनान ये था, मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि या तो निर्दोष या तो अगर सजा मिलनी है तो सिर्फ फांसी की मिले। जी। यहाँ रोकूंगा मैं आपको क्योंकि वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों समय दो जब विराम नो विराम बाद मुफ्ती अब्दुल कयूम जी સાથેની વાત। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपનું कार्यक्रम अतिथिમાં। अब्दुल कयूम जी, आपने ब्रेक से पहले बताया कि जब फांसी की सजा आपको डिक्लेयर हुई उस टाइम आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे। जी जी जी। आपने अपनी बुक में अपने दोस्तों का जिक्र किया है। हाँ जी जी। आपने जिन जिन लोगों ने आपको टॉर्चर किया उनका जिक्र किया है। आपने आपके दोस्त के साथ साथ बाकी लोग भी थे, जैसे आपने एक अंदर हादसा लिखा कि स्कूटर पे जो बैठे थे वो बहुत ही रो रहे थे जब आपको आपका ध्यान आया, जब आपको कोर्ट में लेके आए। कोई नजदीक, बहुत कम लोग नजदीक आते थे क्योंकि ऐसा बड़ा गुनहगार कौन मिलने जाएगा लोगों की निगाह। लेकिन एक दोस्त आपका दूर से रो रहा था, आपने उनको देखा, आपको पूछा भी गया कि कौन है, आपने बताया कि ये मेरा दोस्त है। आपने पूरा जो भी बुक लिखी है उसमें दोनों बच्चे का भी जिक्र किया है जी। आपने पूरी बुक में अपनी वाइफ का जिक्र नहीं किया है। मेरी वाइफ ने सर जो तकलीफ़ें उठाई हैं, मैंने एक बात उसमें बुक में लिखी है कि मेरी जो यातना है, मैंने जो सहन किया है वो मैं ज़रूर बयान कर सकता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली ने जो स्ट्रगल, जो सफ़र किया है, जो तकलीफ़ें उठाई हैं, ख़ासकर मेरी माँ और मेरी वाइफ ने, उसके लिए तो मेरे पास शब्द भी नहीं है। मेरी वाइफ की 2-3 बड़ी बातें मैं आपको बतला देता हूँ। न्यू एजुकेशन स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते थे। अब ये स्कूल में बार बार कुछ ऐसे ओकेशन, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, वो प्रोग्राम्स के भाई तुम्हारे फादर को लेकर आना। अब जब भी फादर को बुलाया, फादर तो था नहीं, मेरी वाइफ चले जाती है। अब उसको मेंटली कि भाई कहाँ हैं आखिर। तो एक समय तक, एक ज़माने तक तो हमने झूठ चलाया, मेरी वाइफ ने और बच्चों ने, कि भाई सऊदी नौकरी के लिए गए हैं, लेकिन कब तक छुपा। बच्चे तो इतने डरते थे, मेरे नाम से डरते थे। हम मुलाकात में कभी आते हैं तो कहते हम तो ये दुआ करते हैं कि आपके नाम के साथ हमारा नाम ना जुड़े, वरना स्कूल में पता चल जाएगा कि हम किसके बेटे हैं, तो हमको परेशानी हो। इतनी मानसिक हताशा हो गई थी कि मेरी वाइफ ने सुसाइड तक की भी कोशिश की थी और गले पर छुरी फिराई, लेकिन हम लोग समाज के डर की वजह से सारी चीज़ें छुपाए रखते हैं, क्योंकि सुसाइड करना, अपघात करना हर धर्म में पाप है। हिंदू धर्म में पाप है, इस्लाम धर्म में इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा सख्ती से इसे मना किया गया है। तो हम ये डरते थे कि लोग ये सोचेंगे कि मतलब बच्चे खुद आके बोलते थे कि पापा आपका नाम हमारे साथ मत जोड़ो। हाँ, आपका नाम हमारे साथ जुड़ेगा और स्कूल में पता चल जाएगा कि हमारा बाप जेल में है तो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। तो वो लोग भी डर रहे थे उस ज़माने में, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। और बार बार स्कूल में जब पूछा जाता भाई कहाँ है फादर, कहाँ है फादर, तो बीवी तो आज तक वो यूँ समझो कि नीम पागल जैसी, आधी पागल जैसी है, और उसको आज तक वो मुकीम सैयद डॉक्टर हैं, शिफा हॉस्पिटल से इलाज भी चालू है, और दवाएँ रातों को इतनी ज़्यादा, कहीं कहीं तो गोलियां लेनी पड़ती हैं, टेबलेट्स लेनी पड़ती है, उसके बाद उसे नींद आती है। तो इन लोगों ने जो यातना है, मैंने तो चलो 40 दिन क्राइम ब्रांच में रहा, जेल जाने के बाद सुकून हो गया, थोड़ा मारपीट से तो कम से कम बच गया, लेकिन इन लोगों के लिए तो क्राइम ब्रांच हो या कोर्ट हो या वकीलों से मिलना हो या समाज में अपने आप को टिकाए रखना, सब कुछ इनके लिए तो बहुत ख़तरनाक चीज़ थी। इसलिए मैंने एक बात लिखी है कि मैं अपना दर्द तो बयान ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन उनकी एक घड़ी मेरे 11 साल से बढ़कर है। उन्होंने एक एक सेकंड, एक एक मिनट उन्होंने अपने आप को समाज में टिकाए रखने के लिए किस तरह गुजारी है, मैं उसको सोच भी नहीं कभी सकता। ऐसा हुआ, क्योंकि जब मुफ्ती का एक टाइटल मिलता है जी, कोई भी धर्म में, जिसने अपने धर्म का सबसे ज़्यादा अभ्यास किया हो और एक स्टैंडर्ड बन जाता है। जब मुफ्ती का लेबल मिला तो बहुत लोग आते थे,
अब्दुल कयूम जी के पास कितने सारे लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम लेके आते होंगे, कई बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे को लेके आते होंगे कि मुफ्ती साहब से सीखो कुछ, जी जी कुरान की आयतें इनसे सीखो, याद करो। कई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बात लेके आएंगे जो इस्लाम धर्म की, जिनका सॉल्यूशन जी जी आप देते थे। इतनी अच्छी रेप्यूटेड एक इमेज के बाद सीधा गुनहगार, और ऐसे किसका गुनहगार जो मेरे हिसाब से आपकी कौम के लोग भी आपको माफ नहीं कर पाते। जी 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 सही बात है। ये बातें जो होती है, मेरे हिसाब से कुछ सीखने को मिला इससे। पूरे हादसे से अगर पूरा निचोड़ निकाले, अगर उसको 3-4 सेंटेंसेस में अगर बयान करना है तो क्या निकालेंगे? बस क्योंकि दिस इज अ लाइफ। जी जी आपके ऊपर जो एलिगेशन लगा, मेरे हिसाब से इट्स अ वर्स्ट एलिगेशन। हाँ जी लेकिन कॉमन मैन भी, क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आज मेरे सामने ऐसी शख्सियत बैठी है जिन्होंने जो सहन किया है, शायद वो दिन तो भगवान या खुदा किसी को ना दिखाए, जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी छोटी छोटी परेशानी आती है, लोगों के पे छोटे छोटे एलिगेशंस लगते हैं, उस टाइम उनको कैसे बचना चाहिए? मैंने जो समझा, मुझे जो टारगेट बनाया गया, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, मैंने लिखी भी हैं केस के बुक के अंदर। क्योंकि मुझे आमतौर पर लोग ये प्रश्न पूछते थे कि भाई आप ही को क्यों टारगेट बनाया, तो मैंने सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं। सबसे बड़ी बात जो मैंने समझी, 27 फरवरी को ये गोधरा कांड हुआ था। 28 को सबसे पहला रिलीफ कैंप हमने शुरू किया था बवाइर हॉल 4 वार्ड पर, और इत्तेफाक से नरोडा पार्टियाँ हैं, गुलबर्ग सोसाइटी है, या असारवा चमनपुरा है, जुगलदास चाली है, यहाँ के विक्टिम्स और जो दंगा पीड़ित लोग थे वो ज़्यादा हमारे यहाँ थे। अब दुनिया भर का मीडिया भी आता था, NGOs भी आते थे, उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होते थे, इसी तरह उनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते थे, और इसी चीज़ से शायद मुझे टारगेट बनाया गया था। आप तिस्ता में नमाज उसी की मिसाल है कि एक ऐसी बाई ने जिसने न्याय के लिए लोगों को साथ दिया, दंगा पीड़ित जो लोग थे उनको साथ दिया, मजलूमों और उजड़े हुओं को साथ दिया, तो उनको भी परेशान होना पड़ा है। तो मैं भी इसी सिलसिले से जुड़ा हुआ था, और मैं समझता हूँ कि हक़ की आवाज़ दबाने की एक कोशिश थी ये, क्योंकि अन्याय मैंने कभी सहन नहीं किया, जुल्म कभी सहन नहीं किया। जालिम के ख़िलाफ़ ज़रूर आवाज़ उठाइए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए, और ये मेरा काम था। और वल्लाह अल्लाह जानते हैं, अगर मैं झूठा हूँ तो उसकी मुझे सज़ा मिले। न सिर्फ मैंने मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदुओं के लिए भी काम किया है। अब 2002 से और थोड़ा हम माजी में जाए, भूतकाल में जाए, तो ये कंडला में पूर आया था 2000 में, फिर 2001 में जो भूकंप आया था, उस वक्त शायद आपको ताज्जुब होगा कि हमारे यहाँ वाड़ीगांव में एक मोहल्ला है, हिंदू मोहल्ला है, सारे हिंदू लोग हैं, तो वहाँ के कुछ नौजवान भी मुझे फ़ंड देने के लिए आते थे। और उससे बढ़कर बतलाऊं कि बचाव के अंदर सबसे पहली ये अंतिम क्रिया के लिए जो भाई मारे गए थे, तो अग्नि संस्कार के लिए मेरे साथ लकड़े भिजाए गए थे यहाँ से। अब्दुल कयूम जी, या एक सीधा सवाल आता है, हाँ। कभी ऐसा जहन में हुआ जब जेल में थे या तो रिमांड चल रही थी कि मैंने अब तक पूरे इस धर्म के लिए, इस मजहब के लिए इतना सारा किया? ये क्योंकि मैं बिल्कुल दिल खोल के ये जवाब सुनना चाहूँगा, हाँ। थोड़ा भी डिप्लोमेटिक आंसर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप जो है बिल्कुल सच्चा है, अपने जहन से निकाल के कहेंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कभी कि जो रिलीजियस लोग थे आपके आजू बाजू, जी जब आप बाहर थे, जब आप मुफ्ती जी का काम बिल्कुल अपने हिसाब से कर रहे थे, धर्म का जो है बात आप फैलाते रहते थे, मजहब की बात, अच्छी अच्छी बातें लोगों तक कहते थे, उस वक्त आपके पास जो ग्रुप था, जी खास करके मैं बात करता हूँ रिलीजियस लोग जी, थे, धार्मिक जो लोग। धार्मिक लोग थे, ग्रुप था पूरा, हाँ जी, उन लोगों ने कहीं इस केस आने के बाद कहीं आपका छेड़ा फाड़ दिया था? बहुत सारे ऐसे थे। मैंने इसमें किताब में भी उल्लेख किया एक वाक़ये का कि शुरू में तो लोगों की हमदर्दियाँ थी, लेकिन फिर जो क्राइम ब्रांच का डर और दहशत, तो लोग दूर होते गए, और समाज में न सिर्फ मुझे, मेरी फैमिली को भी बहुत जूझना पड़ा, वो स्ट्रगल करना पड़ा है। और अच्छे ऐसे लोग, खासकर आप जो तबके का जिक्र कर रहे हैं, धार्मिक लोगों का, बहुत सारे लोगों ने जो मेरे साथ उठते बैठते थे, मेरे साथ मतलब धार्मिक कामों क्रियाओं में भी जुड़ते थे, तकरीबन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, छेड़ा फाड़ दिया था। और ख़ासकर सेशन कोर्ट के जजमेंट के बाद, पोटा कोर्ट के जजमेंट के बाद, तो
कई लोगों ने हमें ये भी जवाब दिए कि अब तो आप गुनहगार साबित हो ही गए, इसलिए हम आपका साथ नहीं दे सकते। तो यकीनन बिल्कुल सही बात है। बहुत से लोगों ने छेड़फाड़ दिया था, किनारा कशी इख्तियार कर ली थी, लेकिन जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी संस्था है हमारी, आज़ादी से पहले से इसकी तारीख रही है, इस देश को आज़ाद कराने में भी बड़ा योगदान उनका रहा है। तो मौलाना अरशद मदनी साहब और हमारे दूसरे गुलजार आज़मी साहब जमीयत उलमा महाराष्ट्र के हैं, इन लोगों को मेरी सच्चाई पर यकीन था। मैंने अंदर से लेटर भी लिखे थे इन लोगों को कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, और बार बार मैं लेटर लिखता रहता था कि अगर मेरी जांच सीबीआई या और कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी मेरी जांच करती है और अगर मैं गुनहगार साबित होता हूँ, फिर ट्रायल की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, कोर्ट प्रोसीजर की भी ज़रूरत नहीं, मुझे आप वैसे ही फांसी लगा दो, लेकिन शर्त ये है कि ईमानदारी से जांच हो इस केस की। तो बहुत सारे लोगों को विश्वास भी था। जैसे मौलाना अरशद साहब ने एक बात उस ज़माने में कही थी, उस समय में हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद, कि इन लोगों की पैरवी करना, ये निर्दोष लोग हैं और निर्दोषों की पैरवी करना, इनकी मदद करना हमारे लिए मगफिरत, यानी शायद आपकी ज़बान मोक्ष बोलते हैं कि मोक्ष का ज़रिया होगा। तो बहुत सारे लोगों ने यकीनन किनारा कशी इख्तियार कर ली, हमसे दूर भागते थे, मुलाकात में आने से भी डरते थे, मेरी फैमिली से बातचीत करने में भी डरते थे, लेकिन कुछ न कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्हें यकीन था, जैसे मेरे दोस्तों का मैंने जिक्र किया है, मेरे ऊपर जिन लोगों ने उनको था कि कुछ भी हो, हाँ, लेकिन जी ये तो नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, उनको विश्वास नहीं। यहाँ रोकूंगा। अगेन एक टाइम हुआ छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, विराम बाद अंतिम तबक्कानी वातो मुफ्ती अब्दुल कयूम जी સાથે। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં વાત કર્યા છે આપણે અક્ષરધામ કેસમાં જેમની ઉપર ફાંસીની સજા ડિક્લેર થઈ હતી અને ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટે જેમને નિર્દોષ છોડ્યા તેવા મુફ્તી અબ્દુલ કયુમજી સાથે। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। कोई भी गुनहगार को किसी मजहब के साथ जोड़ना कहाँ तक मुनासिब मानते हैं? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है। बदकिस्मती से आज दुनिया भर में जो आतंक फैला हुआ है, दुनिया भर में जो दहशतगर्दी फैली हुई है और तकरीबन इस्लाम के साथ जोड़ी जा रही है। हालांकि ये मैंने एक जो बात कही ना कि इस्लाम में तो इतनी पारदर्शकता और इतनी नरमी है, इंसानियत है, लेकिन सामने रिजल्ट भी ऐसा दिख रहा है। देखो अब्दुल कयूम जी, मेरी बात सुनो, मेरे हिसाब से ज्यादातर दिख ही रहा है और उनका मैसेज भी ये आता है कि हम इसी वजह से कर रहे हैं। मैं एक बात बतला रहा हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि हकीकत में कौन कर रहा है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि करने वाला कोई और है और मुसलमान के नाम पर डाल दिया जा रहा है, या ये भी हो सकता है। दूसरी चीज़ और एक ये भी हो सकती है कि करवाने वाला कोई और हो और मुसलमान को इस्तेमाल कर रहा हो। तो इस वक्त करवाने वाला कोई और है। उस वक्त ऐसे मौके पर आप जैसे लोगों का एक फर्ज नहीं बनता क्या बिल्कुल कि उनको अपील करें कि डोंट डू दिस जस्ट बिकॉज ऑफ यू। पूरी कौम का नाम बदनाम हो रहा है। बिल्कुल सही। आपने अभी 2 रोज़ पहले ये खबर पढ़ी होगी शायद, पाकिस्तान के कुछ उलमा ने एक फतवा जारी किया है कि सारी चीज़ें जो हैं ये गैर इस्लामी चीज़ें हैं और इसको बंद करवाना चाहिए। इनको यहाँ तक भी कहा कि इनको इस्लाम से इनको खारिज कहना चाहिए, कि जो लोग भी है, चाहे वो ISIS हो या और जो भी संगठन है इस किस्म की जो हरकतें कर, तो बेशक ये तो उलमा का फ़र्ज़ है, मौलवियों का फ़र्ज़ है। इसलिए हमारा लास्ट टाइम एक प्रोग्राम हुआ था 16 अप्रैल को, उसमें हमारे एक राष्ट्रीय प्रमुख आए थे मौलाना अरशद मदनी साहब। उन्होंने एक बात, बड़ी अच्छी बात की, खासकर मदारिस वालों को, मदरसे वालों को और उलमा को, कि अपनी तालीम को पारदर्शक बनाओ और वारंवार बार बार यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स करो। हिंदू कौम में जो बुद्धिजीवी लोग वो लोग भी आए, देखे कि क्या हो रहा है और देखे कि क्या वाकई। मेरे हिसाब से गलत फहमियां बहुत है। हाँ जी बिल्कुल, ये गलत फहमियां मेरे हिसाब से ऐसे ही दूर होगी। ऐसे ही दूर होगी। मैं वही बात आपको जब हम आपके घर आएंगे, आप हमारे घर आएंगे, तभी जाके एक दूसरे का घर बात तो बहुत जोर देकर कहीं कि आप बार बार ऐसे प्रोग्राम करो। हिंदू बुद्धिजीवियों को, समझदार लोग जो हैं, सेकुलर माइंड जो लोग हैं, उन्हें बुलाओ और तालीम पारदर्शक बना दो। उनके सामने कुरान रख दो, उनके सामने हदीस रख दो, पैगंबर साहब के कथन जो हैं या इस्लाम के और भी जितनी भी तालीमात हैं रखो। उन्हें बतलाओ कि कहाँ है आतंकवाद,
या कहाँ है टेररिज्म की तालीम, या कहाँ है इस्लाम ने कहा है कि निर्दोषों को मार दो या धमाके करो या फितना फसाद फैलाओ। तो ये बिल्कुल हमारी जवाबदारी है, मौलवियों की जवाबदारी है, मदरसे वालों की जवाबदारी है कि जो गलतफहमी हो रही है उसकी कुछ ना कुछ वजह, कुछ मुसलमान भी हैं, उससे इनकार नहीं है कि यकीनन कुछ मुसलमान हैं जो ऐसी हरकतें कर रही है जिसकी वजह से लोगों तक एक गलत मैसेज जा रहा है। लेकिन एक वजह, दूसरी एक चीज़ ये भी है इसकी वजह 2, 5, 10, 15, 50 लोगों की वजह से पूरी कौम को बदनाम करना, ये कुछ वाजिब नहीं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कई लोगों का ये भी आक्षेप है कि मुफ्ती अब्दुल कयूम ने जो भी बुक लिखी है जी, ये बुक आने वाले दिनों में जी, जो लोग कोई गुनाह करना चाहते हैं उनके लिए गाइड बनेगी कि सर- कैसे टॉर्चर होगा, उससे कैसे बचो, जेल में जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, बड़ा चक्कर छोटा चक्कर, तो जो गाइड है पूरी उनको वो मिल जाएगी, ऐसा भी आक्षेप हुआ है। मैं एक बात बतलाऊँ आपको, एक खूबसूरत बाग होता है, बगीचा होता है, गार्डन होता है, उसमें आदमी की अपनी अपनी मेंटेलिटी और सोच होती है कि खिंजीर जिसको हम बोलते हैं, सुअर बोलते हैं गुजराती में, वो गार्डन में भी जाएगा तो वहाँ तो गंदगी ही तलाश करेगा, वो फूल नहीं तलाश करेगा। तो ऐसा होता है कि आप जितना अच्छे से अच्छा लोग पेश करो दुनिया के सामने, लेकिन अगर किसी की मेंटालिटी ही गलत है तो उसके अंदर से वो नुक्स और खामी तलाश करने की कोशिश करेगा। मेरा हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि इसके ज़रिए से मैं पुलिस को बदनाम करूं या इनका क्या टॉर्चर है या जेल के, वल्लाह मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि किसी के भी साथ अन्याय ना हो, इसलिए मैंने कोई गलत बात नहीं लिखी, कोई नई बात नहीं लिखी। पुलिस की तरफ से क्या क्या टॉर्चर होते हैं मैंने तो आज लिखा है, इससे पहले कई लोगों ने इस किस्म की बातें लिखी हैं कि पुलिस किस तरह जुल्म करती है। यही वजह है कि इससे पहले जब पोटा कानून आया तो उसका भी विरोध हुआ, उसके पहले टाडा बना था, टाडा का विरोध हुआ, अब उसके बाद अभी गुजकोट और गुजसीटो कानून बनने जा रहा है, उसका भी विरोध हो रहा है। सिर्फ एक ही वजह है, कानून में किसी को अविश्वास है ऐसी बात नहीं, कानून पवित्र है, बंधारण पवित्र है, हमको पूरी आस्था है कानून के साथ बंधारण, लेकिन उसको जो लोग उसको हाथ में लेकर अगर उसका गलत इस्तेमाल कर, उसके लिए है कि इसका यकीनन मिसयूज़ हो सकता है। टाडा का भी मिसयूज़ हुआ, पोटा का कितना मिसयूज़ हुआ दुनिया जानती है। देखो हरेन पंड्या में लोग छूट गए, हमारे केस में गलत इस्तेमाल हुआ, हम लोग छूट गए, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो मैंने हरगिज़ ये नहीं लिखी है कि किसी को इसके ज़रिए से और कोई ऐसी बात लिखी ही नहीं। मार्गदर्शन तो किसे कहा जाता है कि कोई क्राइम का कोई तरीका बतलाया हो उसको पुलिस का जुल्म या अपनी आप बीती बयान करना, मैंने जो सहन किया वो बयान करना, वो मार्गदर्शन कैसे होगा? अंतिम सवाल मेरे हिसाब से इस टाइप जिस तरह से आपने अपनी बात बयान की है, क्योंकि हमने भी वो बुक पढ़ी, तो मेरे हिसाब से एक एक चीज़ ऐसी है जो इंसान जो पढ़ने वाला चाहेगा कि और आगे मैं पढ़ूँ और क्या होगा क्या होगा क्या होगा। सीधी नज़र आपने मुंबई में रिलीज़ किया था, इस दिल्ली में। मेरे हिसाब से कई लोग आए भी होंगे अपनी जमात के लोग, एक फिल्म ही बनाए। मुझे बहुत पहले एक साहब ने 4-6 महीने पहले एक साहब ने कहा था, मैंने उसको हाँ भी कहा, लेकिन मेरी शर्त एक ही थी कि इसमें कोई अतिशयोक्ति बोलते हैं शायद गुजराती में, हम बोलते हैं गुलो, यानी हद तजावुज़ी ना हो, गलत चीज़ ना बताई जाए। जो लिमिटेड बात में बतलाऊँगा या जो बात मैं कहूँगा उससे ज़्यादा विशेष कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि कोई नफ़रत फैलाना हरगिज़ मकसद नहीं है, समझे? सच्ची बात है, हाँ, वही लोगों तक पहुंचाना। और मैं समझता हूँ ये तो बहुत सारे पुलिस अफसरान ने भी ये किताब ली है और पढ़ी है, मुझे कुछ लोगों ने बतलाया, और बहुत से खुद, क्योंकि जहाँ मैंने 2-4 पुलिस अफसरान के बारे में लिखा है तो वहाँ तारीफ़ ज़्यादा लोगों की। आप देखिए जेल सुपरिटेंडेंट हैं या और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं, विपुल विजय साहब हैं और भी लोग, तो आप पूरी किताब का लब्बे लुबाब जिसे कहते हैं, लेखा जोखा कहेंगे, वो पढ़े तो मैंने तारीफ़ ज़्यादा की है इस खाते की कि अच्छे लोग हैं। और मैं समझता हूँ हर समाज में अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो या और कोई समाज में, या इसी तरह पुलिस में है कि न्याय तंत्र में है कि वकील, हर समय अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं। कई कम लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है, उसको उजागर करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन। दर्शक मित्रों, आती बात खास एक एवा शख्सियत સાથે કે જેણે 11 વર્ષ બિલકુલ યાતનાઓ સાથે વિતાવ્યા અને અલ્ટિમેટલી નિર્દોષ પૂર્વાર્થીને એક એવો મોટો હાઈ પ્રોફાઇલ કેસ બિલકુલ કે જેણે સમગ્ર હિન્દુસ્તાનમાં ચકચાર
જગાવી હતી તેવા કેસમાંથી નિર્દોષ છૂટી આવેલા મુફ્તી અબ્દુલ કયુમજી સાથેની આ વાત. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. This show is powered by Universal College of Engineering and Technology and HCG Cancer Hospital.